अगर हम लोग स्टार्ट कर दें क्योंकि उनकी कॉल आई है अभी पार्लियामेंट हाउस से, वो कह रही हैं कि वो थोड़ी देर तक ज्वाइन कर लेती हैं 5-10 मिनट्स में, तो वो कह रही हैं कि आप लोग स्टार्ट कर दें सेशन। और अस्सलाम वालेकुम ज़रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम ज़रा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। We should start. यस, क्योंकि अभी वसीम साहब की कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि मैडम को प्रेसिडेंट ने बुलाया है, वो वहाँ चली गई हैं, लेकिन शी इज ऑन हर वे बैक, तो आप थोड़ा सा वेट मेरी बात करें। हुई है अभी वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस से, she will be joining us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्यूरिंग द मीटिंग अपने माइक्रोफोन जो है वो म्यूट पे रखें, और जब आपने बोलना हो आप उसको टर्न ऑन कर दें, तो इससे ज़रा इर्द गिर्द का शोर नहीं होगा। और चूँकि ये मीटिंग लाइव जा रही है फेसबुक और सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ उसकी आवाज़, जो स्पीकर हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर हो तो बेहतर है, तो काइंडली अपना माइक्रोफोन म्यूट पे कर लीजिए। थैंक यू। I would warmly welcome all of you to the consultation organized for the barriers and challenges being faced by women with disabilities, especially while accessing gender-based violence services and information in Pakistan. I would welcome all of you on behalf of Women Parliamentary Caucus, UNFPA, and STEP, Special Talent Exchange Program. This is one of the consultation workshops out of the series we are going to have with parliamentarians, with the government stakeholders, civil society stakeholders, DPOs, and women leaders in disability movement in Pakistan. So let's start with the introduction of the participants and the esteemed panelists in our meeting today. आज हमारे साथ मौजूद हैं UNFPA से UNFPA पाकिस्तान ऑफिस से सालिया लामे। सालिया, वेलकम टू द कंसल्टेशन। हमारे साथ मौजूद हैं आबिया अकरम, who is the director programs, special talent exchange program. She will be talking about overall the project and the major challenges being faced by women with disabilities. And we have Myra Imran. She's a well-known journalist, especially she has a lot of contribution on writing about the rights of persons with disabilities for the long time. Like we know Myra since we started our work in Pakistan. And thank you, Myra, for joining us. और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिदा कुरैशी। Zaida is based in Multan, but she is a national coordinator for National Forum of Women with Disabilities. और Zaida का जो contribution है, which is visible to everyone, वो social women with disabilities की empowerment से लेकर अब wheelchair assisted devices की manufacturing और हर फील्ड में उन्होंने vocational training में बहुत important role play किया है। हमें खुशी है ज़्यादा आज आप हमारे साथ हैं। And we have Sana Ayub, who has been working under this project as psychosocial support counselor. She's based in Lahore और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। उसके अलावा she has been part of the disability movements and leading women with disability in Pakistan. Thank you very much, Sana, for joining us. And we are very honored to have Zala Kaisar with us. Zala is an emerging leader of women with disabilities. I'm very happy that you are joining us today in this consultation. Zala, your role is very important. You belong to a leadership family, a political leadership family. And your father is Speaker National Assembly. So your role will be very important, and we are happy that you are part of the movement. हमारे साथ हैं Mohduma Mirza Hassan Saiba, who is the secretary of Women Parliamentary Caucus. She will be joining us. उन्होंने हमें शुरू से join करना। She is a committed and like visionary leadership on disability particularly, and she is very much concerned about the rights of women with disabilities. हर मौके पे उन्होंने इसको as a champion promote किया, support किया है, and she has been leading the Khadijatul Kubra Award
which is a flagship program every year with Parliament Caucus. और इस साल भी वो उसको लीड कर रही हैं. Ms. Munaza Hassan हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में. She has some other commitments right now, but she will be joining us during the meeting. मैं इस मीटिंग का बाकायदा आगाज करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सालिया रामे से from UNFPA, that if you can shed light on the project and the whole scenario of gender-based violence, access to gender-based violence and services and information in Pakistan, especially from the perspective of women with disabilities. Salia, over to you. Thank you, Atif. मेरे ख्याल में आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है. उसमें से I will just give very brief remarks on behalf of UNFPA. I might not go in such a detail. I'm sure मेरे बाद जो बहुत काबिल speakers हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से जो है वो बात करेंगे. And I look forward to listen to all of them. सबसे पहले I would like to say a warm welcome to all the honorable speakers who are joining us for this discussion today. And assalamu alaikum to everyone. To begin formally, I would like to start by commending the efforts of STEP and the leadership of Ms. Munaza Hassan, Secretary, Women Parliamentary Caucus, for organizing this very important discussion on the barriers and challenges of women with disability in accessing GBV services and information. We all know that too many existing programs meant to prevent and respond to gender-based violence do not take into account the unique needs and concerns of women and girls with disabilities, which needs our focus, attention, and dedicated actions. Ending gender-based violence and harmful practices against women and girls is a key priority for UNFPA, tied to both the Sustainable Development Goal as well as the landmark program of action that stemmed from the 1994 International Conference on Population and Development, ICPD, whose overarching vision, grounded in gender equality, remains more vital than ever. This commitment is also at the heart of UNFPA's 3 transformative results, where along with partners, UNFPA strives to end preventable maternal deaths, end unmet need for family planning, and end gender-based violence and all harmful practices, including child marriage. The promotion of gender equality, prevention and response to GBV and harmful practices, including child marriage, and the empowerment of women and girls is central to mandate of UNFPA, both as standalone dedicated area as well as mainstreamed approach in its broader agenda related to gender equality, prevention and response to GBV in the context of sexual and reproductive health rights. To able to achieve all these important objectives, it is important that the barriers and challenges for persons with disability in accessing GBV services and information are addressed. Government departments, government partners, and service providers need to integrate disability aspect into their programs and interventions. Realizing the importance of inclusiveness and participation of all people, especially marginalized communities, including women and persons with disability in the process of development, should be at the center of our work and action plans. This is also necessary for ensuring that no one is left behind. UNFPA is a strategic partner to the national efforts that aim to mainstreaming and securing the needs and concerns of persons with disabilities in the national policy advocacy and institutional capacities. UNFPA works closely with Government of Pakistan to address data gaps at various levels to generate evidence that will inform disability inclusive policy making and programming. Taking this opportunity, I would like to acknowledge the national efforts and the UNFPA's commitment to support such efforts, both at national and provincial levels. UNFPA development partners such as FCDO and other long-term partnership and support has been instrumental for promoting the work on women empowerment and gender equality with special focus on persons with disabilities. I again appreciate STEP for taking this agenda very seriously and forward to make sure that whatever successes we have achieved so far are implemented also. Thank you.
Thank you very much, Alia, for giving us the background of gender-based violence, and especially the movement about the shift or attention toward the women with disabilities, which we are working together. Probably this is the first time when we have been diverting attention of the decision maker toward this important topic, which was really discussed. And I will request now our Director of Programs of Special Talent Exchange Program, Abia Akram, to explain the situation and in-depth analysis on with little bit more detail. Abia. Thank you so much. Thank you everyone for joining us today, and those who are listening online in the live session. Thank you very much, Solia, for your time and your support for this initiative, especially for the UNFPA, because we thought like this was the point which was missing from all the discussions since like last 2 decades we have been working in the disability sector, and we were like managed somehow to bring the voices of women with disability in the mainstream development organizations agenda on the policy level, on the legislation. But somehow women and girls with disabilities facing gender-based violence was a topic which was not very openly discussed because of the cultural context, because of our limitations in the service providing and all. So we really thankful for this initiative of UNFPA and how they are supporting us to start this program in Pakistan. I'm thankful to Zala Kaisar for joining us today. Thank you so much, Zala. And all the speakers, Zahida, Sana Ayub, Aliza Munim and Miss Myra Imran, thank you very much, because हम लोग यही सोच रहे थे कि ये एक collective effort को जब हम देखते हैं तो उसमें provinces level से भी, मीडिया से भी, policy and legislation, उस सब perspective से जब तक हम इसको comprehensively नहीं देखेंगे वो change possible नहीं है जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं कि gender based violence को हम एक पाकिस्तान की नैप के ऊपर ला सकें, जहां पे हम उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी उसके निकाल सकें. और थैंक्स टू वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस के साथ हम लोग बहुत अरसे से और बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़ा हसन की हमें सपोर्ट रही है वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट में, उनकी इंगेजमेंट में. मैं ब्रीफली इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि we have tried to conduct a small survey with women with disabilities all over the country. Like we have just taken almost 300 sample questionnaires from women with disability, and few of the government and international organizations stakeholders have responded to the survey कि जिसके अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिली कि कौन से ऐसे गैप्स हैं और जो करंट सिनेरियो है वो क्या है. Like persons with disabilities are 1.5 times at greater risk of violence than if we compare to the non-disabled, even higher risk for women with disabilities, the intellectual disabilities. And women with disabilities are 2 to 4 times more likely to experience intimate partner violence. ये एक बहुत जो चीज़ हमारे सामने आई थी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी और फिर रीजनली भी और हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी. और when we talk about during the crisis situation, तो वो जो violence की scenario है that increase a bit. उसकी जो existing multiple barriers which was identified by women with disabilities themselves was attitudinal barrier. सबसे पहले कि लोग gender based violence के ऊपर बात करना नहीं चाहते क्योंकि person with disability पहले तो वो acceptance ही नहीं है. The stigma attached with your disability is so much like कि आप disability के साथ साथ violence की बात नहीं कर पाते. Second, जो physical और environmental barriers हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर exist करते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल भी जाएं तो पुलिस स्टेशन हमारे एक्सेसिबल नहीं है, या वो जगह जहाँ पे आपने जाकर अपने लिए फाइट करनी है, अपनी आवाज को उठाना है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चरली आप
کو بہت سارے بیریئرز فیس کرنے پڑتے ہیں. تھرڈ جو بیریئر ہمارے سامنے ہے دیٹس مور آن دا کمیونیکیشن, کہ سائن لینگویج انٹرپریشن اویلیبل نہیں ہے فار دا بلائنڈ پیپل, مٹیریلز جو ہے وہ بریل میں نہیں اویلیبل ہوتا, ان کو پراپرلی اسسٹ کرنے میں وہ سسٹم موجود نہیں ہے. اور جو فورتھ بڑی چیز جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہے دیٹس دا پالیسی اینڈ دا لیجسلیشن گیپ, کیونکہ پالیسیز میں جتنی بھی جینڈر بیس وائلنس اور اس کے اوپر سپورٹ خواتین کے رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہیں, وہاں پہ پالیسی ریفارمس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ورلڈ وومن ود ڈسیبلٹی اس میں ایڈ کر سکیں اور اس کو ہم پراپرلی ایڈریس کر سکیں. ہم اس سارے پروسیس کو جب آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو دین وی اسٹارٹیڈ دا کنسلٹیشنز ود وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی آل اوور دا کنٹری. اور جو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج ہمیں دیکھنے میں آیا کہ کووڈ-19 کی سچویشن میں سائیکو سوشل سپورٹ اور جو پرابلمس تھے وہ بہت انکریز ہو گئے, کیونکہ وہ ان کو بیسک سروسز تک ایکسیس نہیں مل رہی تھی. they were not getting their employment opportunities, جو ایگزسٹنگ کر بھی رہی تھی ان کو بھی وہ جاب سے نکال دیا گیا. تو اس ساری سچویشن میں جو ان کو سائیکو سوشل اور ٹراماز اور ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اس کا بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ گھروں کے اندر رہنے سے, اور پھر وائلنس اینڈ ہراسمنٹ کیسز, جو گھروں کے اندر خواتین تھی ان کو پراپر سیف اسپیس نہیں مل رہی تھی, جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آئے اس اسٹڈی میں. لیجسلیٹو انوائرمنٹ کو جو بار بار اس میں ڈسکس کیا گیا وہ یہی تھا کہ like we have UN Convention on the Rights of Persons with Disability, جس کو سائن بھی کیا گیا, ریٹیفائی بھی کیا گیا, and following the 18th constitutional amendment and devolution of the powers, like سندھ میں ایک بل پاس ہوا, پھر بلوچستان میں ڈسیبلٹی رائٹس بل پاس ہوا, اور اس کے بعد کلیکٹیو ایفرٹ اور بہت زیادہ سپورٹ ود the Ministry of Human Rights, with Women Parliamentary Caucus اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی وجہ سے ہمارا جو آئی سی ٹی رائٹس بل تھا وہ بھی اپروو ہوا. لیکن ان سب لیجسلیشن کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ابھی بھی گیپ ہے کہ امپلیمنٹیشن, اور پلس یہ کہ رول آف بزنس کس طرح سے بنائے جائیں جس کے اندر کلیئر انڈیکیٹرز ہوں فار وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی, کہ ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. جو ایک اور پرابلم کی بات, سوری میں تھوڑا سا ٹائم لائک 2-3 منٹس اور لوں گی اس پریزنٹیشن کے لیے. دین وی ہیو دا ڈیٹا پرابلم, کہ ڈیٹا سیگریگیشن نہیں تھی. جب ہم نے سائیکو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی وومن ود ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ جینڈر بیس وائلنس فیس کر رہی ہیں, یا ان کی کوئی رپورٹنگ میکینزم نہیں ہے, ڈیٹا سیگریگیشن نہیں تھی. تو واٹ وی ڈیڈ کہ ہم نے ان تمام خواتین کو انگیج کیا جن کے آلریڈی نیٹ ورکس اور وومن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن تھی, تاکہ وہ ان کو ایک سپورٹ میکینزم کے تھرو آن لائن پیئر سپورٹ پرووائڈ کر سکیں. اس پہ ایک اور جو سب سے بہت زیادہ ویزیبل گیپ ہمیں نظر آ رہا تھا وہ تھا انسٹیٹیوشنل اسپیس, کہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو جب آپ یو این سی آر پی ڈی کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری لیجسلیشن پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک پراپر اسپیس ہو جہاں پہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکیں. تو جیسے ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی اسٹیبلش کی ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی, اسپیشل کمیٹی آن دا رائٹس of persons with disability in the leadership of Speaker National Assembly, تو اس میں بھی ہم نے یہی جو پرسپیکٹو تھا کہ persons with disabilities کو اسپیس دی جائے, اور اس میں جو اسٹرانگ ریکمنڈیشنز آئی ہیں آن دا پالیسی لیول, جی بی وی جو پریونشن ریکوائرز بوتھ ہائی لیول پالیسی اینڈ کمیونٹی بیسڈ انٹرونشنز, ان کے اوپر جب تک ٹوئن ٹریک کے اپروچ کے تھرو کام نہیں کیا جائے گا تب تک امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو ڈسکریمنیٹری لاز, ریگولیشنز اینڈ پالیسیز جو کہ پروٹیکٹ اور پراپر سروسز وومن ود ڈسیبلٹیز کو پرووائڈ نہیں کر سکے, ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. Thirdly, in the COVID or the pandemic situation, how we can address to the humanitarian response policies and legislation from the perspective of the gender-based violence.
उसके बाद हम लोगों ने एक और जो रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूशनल साइड पे थी वो ये है कि इस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट सोशल प्रोटेक्शन मेडिकल गाइडलाइंस कि जिसके अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस की बात की जाए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम प्रॉपर इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. Second, establish, conduct and report national dialogue कि उस national dialogue में women gender organizations, UN, international organization and the state representatives उन सब के साथ साथ persons with disabilities की organizations को engage किया जाए ताकि वो especially from the perspective of gender based violence इस चीज को highlight कर सकें. और उसके प्लान और टारगेटेड सोल्यूशन की बात हो और फाइनेंशियल एलोकेशंस की कि हमारे इस सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास प्रॉपर बजटरी एलोकेशंस हो जहाँ पे तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ बैठकर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जेंडर बेस्ड वायलेंस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना सकें. डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो की रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि हमें मैप करना चाहिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एट ऑल लाइक डिस्ट्रिक्ट्स टू द नेशनल टू द रीजनल लाइक जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो और वो लॉबी कर सके फ्रॉम द प्रोविंस टू द नेशनल लेवल फॉर डिसेबिलिटी राइट्स. The final recommendation I can just put here on the civil society organizations representatives कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा important है कि हम उन networks को support करें और establish करें जो कि engage कर सकें social protection mechanisms में और plus वो काम कर सकें crisis और hotlines जो हम मैनेजमेंट की सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. ये रिकमेंडेशंस वो हैं जो अभी हम लोग कंपाइल कर रहे हैं. तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप लोगों के पास भी यहाँ पे इसमें ईमेल एड्रेस में प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशंस हो इन क्वेश्चंस को लेकर तो आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं. How we can include women and girls with disabilities, gender-based violence mitigation support in our programs. और उसी की बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी रिफॉर्म पे भी काम किया जाए और उसके साथ साथ प्रोविंस लेवल पे, सिटीज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग जाकर वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करें कि जहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज कंफर्टेबली they can feel like getting a safe space और उनको एक dignified life जो है वो provide की जा सके. Thank you. Thank you very much, Abia, for detailed analysis and your recommendations and identifying the gaps on the issue, especially particularly the barriers faced by women living in rural areas of Pakistan when they are trying to access gender-based violence services, whatever is existing in the country, and information related to gender-based violence. The one point which you highlighted about the special committee on disability, this is the first time when Speaker National Assembly has taken a very good initiative to establish a committee. This is the first ever committee on the rights of persons with disabilities within the parliament. And this consultation, which we are going to have today, the outcome recommendations of this consultation will be feeding to the working of special committee. Special committee को इस meeting के results का इंतजार है कि वो उसके मुताबिक अपने लाए अमल में इसको शामिल कर सके. इसके अलावा इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने ने की है रूल्स ऑफ बिजनेस पे. Now we have legislation on disability rights. हमारे पास ICT rights of person with disabilities act है इस्लामाबाद में. हमारे पास सिंध में empowerment of person with disability act है. हमारे पास बलूचिस्तान disability act है. गिलगित बल्तिस्तान में है. पंजाब और केबी में होने जा रहा है. इन तमाम legislation के अंदर वुमेन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद के लिए रूल ऑफ बिजनेस बनाना बहुत जरूरी है. और ये एक ऐसा काम है जिसमें वुमेन विद डिसेबिलिटीज की
नुमाइंदगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और उन डायलॉग्स में जिनका आप ने जिक्र किया उनके अंदर होनी चाहिए, ताकि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो उन इश्यूज को एड्रेस करे जिनको वो फेस कर रही हैं। इसके अलावा हम अक्सर ये बात अपनी मीटिंग्स में और खासतौर पर लेजिस्लेटर्स के साथ जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम कहते हैं कि लॉ के अंदर कुछ टीथ होने चाहिए। लॉ विदाउट जॉज इज नथिंग। उसके अंदर बाइट करने की एक सलाहियत होनी चाहिए कि अगर कोई उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो उसके लिए पेनल्टीज क्या है, और these penalties will be defined through rule of business. Now I'm going to invite, sorry, before inviting the next speaker, I would like to acknowledge Aliza. भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। I would like to acknowledge, अब आ रही है आपको आवाज नहीं? जी अब आ रही है। Aliza Munim from Karachi with us, and for her we have Ali Afzal, a sign language interpreter. Thank you very much, both of you, for joining us, and we will be hearing from you during our open discussion time. So I would like to invite you, without any delay, Maya Imran, who is a very well-known journalist and has been very active in the journalist community. Disability पे उनका काम, especially the news के अंदर जितने भी डिसेबिलिटी में डेवलपमेंट होती रही है, अगर हम मायरा के पुराने आर्टिकल उठा के एक जगह कंपाइल कर ले तो वी कैन सी द होल पिक्चर ऑफ डिसेबिलिटी मूवमेंट फॉर द राइट्स इन पाकिस्तान. Today Myra is going to speak about the role of media in supporting women with disabilities, which is critically important, how media highlights this issue. Myra, over to you, please. बहुत शुक्रिया आतिफ आपका, थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑनर्ड कि आपने इस फोरम पर बुलाया मुझे, क्योंकि अभी जो डिस्कशन, अभी जो आबिया ने भी प्रेजेंटेशन दी तो उसमें मैं यही देख रही थी कि जो मीडिया के लिए स्ट्रेटजी है इस सारे के अंदर, या जो मीडिया किरदार अदा कर सकता है और उसके लिए रिकमेंडेशंस अगर वहां पर कोई होंगी तो शायद अभी इसमें शामिल इस गुफ्तगू में नहीं हो सकी. तो एक तो ये कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी तबकात है जिनकी आवाज़ पहुंचना मुश्किल हो जाती है हमारे ऐवानों तक. एक तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पहुंचाते हैं, लेकिन मीडिया जो है वो तो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो पूरे मुआशरे की है, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत की या सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है. तो ये मुआशरे की सोच तक पहुंचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मीडिया है, और ये कि मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से मीडिया हमारा नहीं अदा कर पा रहा. और ये कि वक्त के साथ साथ ये कि हमारा ख्याल था कि बेहतरी आएगी, हम मीडिया से बात करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है कि जैसे और मजीद कम होता जा रहा है जो जिम्मेदारी अदा करना मीडिया के जो फराइज में शामिल था. तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों मीडिया में इतनी बुरी तरह नीचे जा रहा है जो एथिकल जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, या वो जर्नलिज्म जो कि खास तौर पे मालूमात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो तबकात की आवाज गवर्नमेंट तक या उन जगहों तक पहुंचाना जहाँ पे मसाइल हल होते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है. तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो मीडिया अदा क्यों नहीं कर पा रहा. तो उसके लिए जो भी इन शोबों में काम कर रहे होते हैं, खासतौर पर मैं कहूंगी कि जैसे स्टेप जैसे इदारे हैं, उनको समझना मीडिया को बहुत जरूरी है कि मीडिया के अंदर क्या चल रहा है. तो जो मेरे पहला पार्ट है बातचीत का वो यही है कि जो मीडिया के अंदरूनी हालात हैं वो काफी हद तक इस वक्त इस तरह के हैं कि जॉबलेसनेस है, इस वक्त जॉब से निकाला भी जा रहा है, डाउन साइजिंग चल रही है, कुछ हमारी पुरानी कुछ पॉलिसीज थी जिसकी वजह से बहुत सारे चैनल्स बना दिए गए, अब उनके पास पैसे नहीं है चलाने के. तो वो जो सारी अबतरी है मीडिया के अंदर वो हमें रिफ्लेक्ट होती नजर आती है हमारी रिपोर्टिंग के अंदर, कि अब जो जर्नलिस्ट है, जो पहले 10 जर्नलिस्ट अगर रखे हुए थे तो वो भी हमें कम लगते थे, लेकिन ये कि उन इदारों ने अब वो 2 जर्नलिस्ट के साथ वही काम कराने की जो है वो ठानी हुई है कि वही सारी की सारी रिपोर्टिंग करेंगे. और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ वही जर्नलिस्ट रह गए हैं जो पॉलिटिक्स कवर करते थे, और जो पॉलिटिक्स कवर नहीं कर रहे थे वो जर्नलिस्ट जो है वो अब अपनी जॉब से बाहर जा चुके हैं. तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है मीडिया की जिसको समझने की जरूरत है. फिर उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि अगर हम वाकई में मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वो स्ट्रेटेजी निकालनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके मीडिया के थ्रू.
تو ایک تو کچھ اصول ہیں جو بنیادی طور پر اب بہت زیادہ جن کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ان سے زیادہ سے زیادہ جرنلسٹ کے ساتھ رابطہ رکھا جائے. پھر جو کیونکہ فیسیلیٹیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہو چکی ہوئی ہے، اب جرنلسٹ خود سے وہ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بیٹ جرنلسٹ اب ہیں ہی نہیں میڈیا کے اندر جن کے ساتھ پہلے رابطے میں رہ کر اور اچھی سٹوریز کرا لی جاتی تھیں. تو اب یہ کہ بدقسمتی سے اب آپ کو سارے جرنلسٹ وہ ملیں گے جو کہ بیٹ جرنلسٹ نہیں ہیں، جو کہ بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں. تو یہ کہ ان کو مٹیریل دینا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، انہیں کنیکٹ کرنا، تو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایکسٹرا آرڈنری ان کی ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ملنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے جرنلسٹ کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ بات پہنچائی جا سکے، ان لوگوں سے کنیکٹ کیا جا سکے جن کی سٹوریز آنا بہت زیادہ ضروری ہیں، تاکہ یہ ویمن ود ڈسیبلٹی اور خاص طور پہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن کی اگر بات کی جائے تو خواتین جرنلسٹ تھیں جو پہلے پہنچ جاتی تھیں، رابطہ بھی کر لیتی تھیں، وہ سٹوریز نکال بھی لیتی تھیں اور انٹرسٹڈ بھی ہوتی تھیں وہ سٹوریز کرتے ہوئے. لیکن جو بدقسمتی سے جو کرائسس آیا میڈیا کا پچھلے 2-3 سال سے، اس میں تقریباً کوئی ایسٹیمیٹ ہمارا رف ہے کہ کوئی 15,000 کے قریب جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز نکال دیے گئے، تو ان میں سب سے پہلے خواتین ہی کو نکالا گیا. تو اب وہ خواتین کی ایک کمی نظر آتی ہے. تو اگر آپ ایکسیس ٹو جسٹس کی بات کریں ویمن ود ڈسیبلٹی کی، تو ان تک پہنچنا، ان سے بات کرنا، مرد حضرات بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی ایکسیس کے بہت زیادہ میجر ایشوز ہوتے ہیں کہ ان خواتین تک وہ خاندان بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ خود بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، پھر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر کیا مسائل ہیں جو کہ خاتون جو ہے، سب سے پہلے تو خاتون جو مسائل ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے فیس کرتی ہے، اور پھر وہ ڈبل ہو جاتے ہیں جب آپ ویمن ود ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں. تو جرنلسٹ کو اس طرح سے وہ سینسٹائز آپ کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو وہاں پہنچانا، ان کو وہ سٹوریز کے وہ اینگل سمجھانا، تو بہت بڑی ذمہ داری جو کمیونیکیشنز آفیسرز آپ کے ہیں، یا یہ کہ کمیونیکیشن پر آپ کتنا زیادہ اس وقت انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آیا ایکسپرٹس آپ لے رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں، اور اگر ایکسپرٹ نہیں لے رہے ہیں تو کیا خود سے ایسے کوئی آپ نے مینولز بنائے ہوئے ہیں جو کہ آپ ان تک پہنچا سکیں، اور پھر وہ آگے جا کر وہ سٹوریز کے لیے جرنلسٹ کو اور میڈیا چینلز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی تو بات ہو رہی تھی ہماری جو لیگیسی میڈیا یا ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارا جو ٹویٹر ہے، جو ہمارا فیس بک ہے، وہ بھی سب سیاست کی نظر میں ہوا ہوا نظر آتا ہے. جو اصل مسائل ہیں اور جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے، جن کی آوازیں پہنچانے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ جو بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب خود سے اپنی نیوز اسپیس کریٹ کرنے کا ایک موقع لوگوں کو مل گیا ہے، کیونکہ اب سب لوگ اپنی ایک نیوز اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. یہ مگر اس کے اندر پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو جو ویمن ود ڈسیبلٹیز ہیں یا جو ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، کس طرح ان کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنی نیوز اسپیس کریٹ کر سکیں، فیس بک پہ کریٹ کر سکیں، یا یوٹیوب پہ کریٹ کر سکیں، یا ٹویٹر پہ کریٹ کر سکیں، کس طرح سے پوری تھریڈز اس کے پر چلائی جا سکیں، جو کہ اگر کسی کی بیان پر یا اسٹیٹمنٹ پر جو کہ بہت ہی معافی کے ساتھ ایک غلط قسم کا انسینسٹیو بیانات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر پورے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں. تو آیا ایک مثبت چیز کے لیے ٹرینڈز کو چلانا، اس میں اگر سول سوسائٹی کے تمام لوگ اور ہم میڈیا کے لوگ بھی آپ سے مل جائیں تو سب مل کر وہ ساری ٹرینڈز اور وہ والی نیوز اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہاں پہ بھی کمی نظر آتی ہے اسٹریٹجی کی اور انویسٹمنٹ کی، اور ٹائم انویسٹمنٹ پلس جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اگر وہ کی جائے تو قانون کی امپلیمنٹیشن میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے میڈیا. اس کے علاوہ جو آواز ہے وہ پہنچانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، مسائل سامنے لانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن ایک بہت ہی بھرپور قسم کی اسٹریٹجی کی اس وقت کمی نظر آتی ہے، جو کہ کمزور طبقات، کمزور تو میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان سب ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن وہ طبقات جن کی آواز ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس پر مل بیٹھ کر سوچنا پڑے گا اور ایک مضبوط اسٹریٹجی کو سامنے لانا پڑے گا. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ مایا. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب تک ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن یا
खुद डिसेबल लोग या वुमेन विद डिसेबिलिटीज इन इश्यूज को खुद आप मीडिया तक नहीं पहुंचाएंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू हाईलाइट इट। और उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम देख रहे हैं अभी तक, मीडिया की डिसेंसिटाइजेशन की भी जरूरत है। मीडिया इज ओवर सेंसिटाइज्ड अबाउट डिसेबिलिटी। वो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव या जो हमारा डिसेबिलिटी इंक्लूजन पर्सपेक्टिव है, राइट्स बेस्ड मॉडल है, उसके ऊपर अभी तक मीडिया की रिपोर्टिंग उस लेवल पे नहीं हो रही। बहुत कम चंद गिनती के जर्नलिस्ट हैं जो डिसेबिलिटी को ह्यूमन राइट्स मॉडल के तौर पर पेश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं या दिखाते हैं। हमारा जो मास मीडिया, खासतौर पर प्रिंट मीडिया, उसमें वो जार्गन अभी तक वो सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में होना चाहिए। हम एक वो बेचारगी का जो एलिमेंट है वो अभी तक उससे निकल नहीं सके। और हम ये दिखाते हैं कि अगर कोई बंदा व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो बस इसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। एक्चुअली वी हैव टू हाईलाइट लाइक ऑल द स्पेयर्स ऑफ द लाइफ कि लेजिस्लेशन जस्टिस में क्या एक्सेसिबिलिटी है या इनएक्सेसिबिलिटी है। हमारी कोर्ट्स, हमारे पुलिस स्टेशन, हमारा जो इतना भी एम्प्लॉयमेंट का मैकेनिज्म इकोसिस्टम है वो किस हद तक एक्सेसिबल है। एजुकेशन का इकोसिस्टम कैसे एक्सेसिबल हो सकता है। हम डिसेबिलिटी इंक्लूजन की बात करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकल डिटेल्स पे मीडिया ने कभी ऐसा हाईलाइट नहीं किया कि हमारे स्कूल्स, हमारी ये अदालतें, हमारी ये तफरीह गाहें तमाम एक्सेसिबल हैं या नहीं है, टीवी पे आने वाली नशरियात एक्सेसिबल है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमें आपकी बार बार सपोर्ट चाहिए होगी, एंड वी विल कीप रिमाइंडिंग यू आफ्टर इवन लाइक दिस कंसल्टेशन कि हमें कहाँ कहाँ इन इश्यूज को हाईलाइट करना है। नाउ वी हैव अ स्लॉट फॉर अ डिजिटल लाइक वीडियो screening. It's a short video. I would request the IT team if they are ready to screen this video. And after this video, we will continue the series of speakers. वीडियो की आवाज नहीं आ रही। आएगी सर। अभी मैंने म्यूट कर दिया, अब चलें। In addition, COVID-19. Pakistan is a heavily patriarchal society where women and girls face persistent gender discrimination and violations of their rights. Women and girls with disabilities are particularly vulnerable to gender-based violence. They face difficulty accessing support services that could reduce their risk and vulnerability. In addition, COVID-19 has come as a crisis the world was not prepared for. UNFPA and STEP join hands together to support women with disabilities and GBV mitigation through his first ever Pakistan's initiative, through which women with disabilities will be enabled to come forward to actively join the crusade to create a safe place for themselves. Supporting women with disabilities through digital peer counseling and psychosocial program and nurturing them combat for the gender-based violence as well as build capacity to raise their voices for their human rights. Developing advocacy strategies to address gender-based violence in policies and creating a strategic way forward policy to respond future crises. To bring the concerns of gender-based violence and women with disability on Pakistan's map, we request the state to take action and support to create a world which we envision women with disabilities live with dignity and respect. Thank you very much, Imran. Now I'm going to invite Zahida Qureshi, who is the National Coordinator for the National Forum of Women with Disabilities. Zahida, आप
मौजूद हैं। जाहिदा जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। जी, वेलकम जाहिदा, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू आतिफ भाई, आपने इनवाइट किया इस सारी कंसल्टेशन में। वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से हम लोग यहाँ साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं और उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सारी ग्रास रूट लेवल और देहात की सतह की हमारी बच्चियाँ शामिल हैं, जो कि बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बनने से पहले उनमें स्पार्क तो था, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया था उस तरह से एक टैलेंट के तौर पर। लेकिन जब ये ग्रुप्स बने तो हमने उनको एजुकेट किया, सेंसिटाइज किया और बताया कि उनकी ज़िंदगी की कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी आबिया ने शेयरिंग की अपनी प्रेजेंटेशन में कि ये सारे वो चैलेंज हैं जो हमारी डिसेबल बच्चियों को फेस करना पड़ता है कम्युनिटी के अंदर या डोमेस्टिकली। तो साथ-साथ हमने इनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मुल्तान की सतह पे और साउथ पंजाब की सतह पे इनके CNAC और इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके ऊपर काम किया है। कोविड के ऊपर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उसमें हमारी जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज थी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक तो इनको डोमेस्टिक वायलेंस इस सेंस में बढ़ा कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी बुनियाद पे उनके लिए इनकी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई उनको। इनसिक्योर तो वो पहले भी थी, लेकिन इस सेंस में कि जब हर बंदे को अपनी-अपनी पड़ी हो, तो उन्हें 2 तरह से फेयर्स का सामना था। एक तो उनको ये था कि उनकी जो सोशल नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात है, जो घर की सतह पे पूरी थोड़ी बहुत हो जाया करती थी, शायद अब वो भी नहीं फुलफिल होंगी। और सेकंडली ये कि कोविड की वजह से उनकी अपनी लाइफ में बड़ी रिस्क पर थी, जो कुछ बताया जा रहा था, जिस तरह से कोरोना वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है उनकी लाइफ को, तो उस सेंस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा हमारी डिसेबल बच्चियों को। तो इस सारे सिनेरियो में जो वो और ज़्यादा बढ़ा और जो मेंटली चैलेंज बच्चियाँ हैं, उनकी मदर्स के साथ भी हमने बातचीत की, तो उनके भी यही खौफ और खदशात थे कि अब जो मेल पहले बाहर जाके काम करते थे, बिज़ी रहते थे, अब उनको 24 घंटे घर में बैठना पड़ा है, तो उनका भी आपस में एक तनाव बढ़ा इस सेंस में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा कोविड की सिचुएशन में। हमारी ये जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ थी, उनके लिए हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम किया और हमने यहाँ पे मास्क बनाए, उन डिसेबल बच्चियों को घरों में बैठ के रोज़गार दिया कि आप मास्क बनाओ और उससे एक तो उनको इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बढ़ी और दूसरा उनकी एंगेजमेंट भी बढ़ी और उन्हें थोड़ा-सा फ़ियर भी कम हुआ और इस तरह से कोई 15-16 हज़ार के करीब मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए। इसी तरह कोई 15-1600 फैमिलीज़ थी अफ़राद बामाज़री के, जिनको हमने फूड सपोर्ट और कोरोना वायरस सेफ्टी किट्स भी प्रोवाइड की। तो ये तो हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से हमारी एफर्ट्स हैं जो हम लोग अपने लेवल पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ख़वातीन बामाज़री के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक फ़ोकस्ड और प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम डिफ़ाइन करने हैं, जिसमें ना क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो डिसेबल फीमेल्स हैं वो इसमें एंगेज हों। उनको हमें स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके लिए हमें क्या कहते हैं उनकी जो रोज़गार की सूरत-हाल है उसको बेहतर करना है। और इसके अलावा हमने उनके लिए उनके बहुत बड़ी तादाद में ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जिनके CNAC और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स अभी तक नहीं बन सके। अभी तक वो एजुकेशन की तरफ नहीं आ सकी। तो ये वो सारे एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और ऑल्दो कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है। डिसेबल पर्सन्स के हवाले से अगर हम देखें कि हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान बैतुल माल को, तो पाकिस्तान बैतुल माल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है असिस्टिव डिवाइसेज़ के हवाले से। हमने जो कैंपेन लॉन्च की थी कस्टमाइज़्ड असिस्टिव डिवाइसेज़ की, उसके ऊपर हमारा MD पाकिस्तान बैतुल माल ने बहुत ज़्यादा काम किया है और पूरी एक ऐप लॉन्च करवाई है, जिसमें अब अफ़राद बामाज़ूर को घर बैठे और ख़ास तौर पे डिसेबल बच्चियों को घर बैठे इनकी व्हीलचेयर्स उनको मिल जाएँगी, जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ था, ये इस बार हुआ। और अगर हम देख लें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से डॉक्टर मरियम मलिक ने ख़वातीन बामाज़ूरी के लिए बड़ी सपोर्ट की और उनमें जो कोविड के दरमियान ख़ास तौर पर उनकी तरफ से फूड सपोर्ट प्रोवाइड हुई और क्या कहते हैं
इस तरह से ये हमारे सब इदारों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये मसला इतना बड़ा है कि इसको डेली बेसिस पे क्लॉक वाइज हमें लेकर चलना होगा कि भाई हम कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जिसमें वो इग्नोर हो जाए। इग्नोर से मुराद ये नहीं है कि जानबूझ के इग्नोर, इसकी मतलब है कि उनमें प्रोडक्टिव पार्ट समझ के मास्टर का हम अगर उनको जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देंगे तो उनकी वैल्यू क्रिएट होगी उनकी फैमिली के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। और इस तरह की जो कंसल्टेशन आज बिल्ट हुई है आपकी तरफ से, यूएनएफपीए की तरफ से, और बाकी इदारे जब उनको रिस्पेक्ट देते हैं, इंकरेज करते हैं, जैसे WHO ने किया, पाकिस्तान बैतुल माल ने किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है, और इस तरह के जब इदारे साथ आके खड़े होते हैं तो उनके लिए बड़ी हौसला अफजाई होती है कि वो अकेली और तनहा नहीं है, उनके साथ सब दोस्त और इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उस फियर से फिर बाहर आती हैं, उस खौफ से बाहर निकलती हैं और अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले करती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, और मतलब कि उन्हें एक मौका मिलता है काम करने का, एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो वो बड़ा प्रोडक्टिव वे में आगे अपना किरदार सामने लेकर आती हैं। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर करूंगी आतिफ भाई, जो हमारी मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनके रिप्रेजेंटर हम सब हैं, उनकी आवाज़ हम सब हैं, क्योंकि वो खुद से इन सारी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकती। तो पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते हैं कि वो अपने माशी हालात की बिना पर, माशी रवैयों की बिना पर, और बहुत सारे दूसरे खौफ होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो मजबूर हो जाते हैं कि इनके लिए कोई वे फॉरवर्ड प्रॉपर तरीके से हमें बनाना है, उनके लिए इस तरह के सेंटर्स बनाने हैं जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, उनके हमारे लिए इस तरह के हमें सिस्टम बनाना है जहाँ पे वो अपनी मदद आपके साथ जिंदगी गुजार सके। वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करती है, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल जीरो पे हैं, 1% है, 2% है, 3% है, कुछ ना कुछ उनमें रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि उनको किस तरह से हमने उनको डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर लेकर आना, उनका एजुकेशन प्लान हमारे पास क्या है, तो उस एजुकेशन प्लान में लाकर उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनको असिस्टेंट बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए करने की ज़रूरत भी है, हो भी रही है, और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जायदा, आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया। इसमें जो सबसे अहम बात मुझे लगी कि हम बात कर रहे हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की, स्पेशली ऑन द जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्विसेज। तो अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली जो वुमेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन किसी सूरत भी एक्सेसिबल नहीं है, और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स की खास तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि हम वुमेन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव को भी इस डिसीजन मेकिंग में शामिल कर सके, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो सर्विसेज है पाकिस्तान में वो किस हद तक एक्सेसिबल है फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज। We have been joined by Ms. Munaza Hassan, Secretary, Women Parliamentary Caucus. Thank you very much, Madam, for joining us. We have one more speaker, Sana Ayub. Sana Ayub is based in Lahore, and she has been working as psychosocial support counselor for women with disabilities under this project which we are implementing in collaboration with UNFPA. Sana, I would request you to give your perspective of psychosocial support for women with disabilities very briefly, as we are running short of time. So, आप मुख्तसरन अगर आपने इस इशू के बारे में अगर बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आतिफ भाई कि आपने मुझे ये चांस दिया। साइकोसोशल सपोर्ट विद अ स्पेशल फोकस ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस ट्रेनिंग वाकई बहुत यूजफुल रही। ये प्रोग्राम उसने कर रखा है, इसको बंद कर दे। काफी यूजफुल रही फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए, बिकॉज वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ वैसे ही नॉर्मल वेज में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं, इसके अलावा एजुकेशनल बैरियर्स हैं, इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एज सच एक नॉन डिसेबल वुमेन के साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ ये इश्यूज मल्टीपल हो जाते हैं। तो इस जो है वो एज अ साइकोसोशल सपोर्ट काउंसलर के तौर पर जब मैंने वर्क किया तो मुझे ये ज्यादा फील हुआ कि इन फीमेल्स के साथ फिजिकल वायलेंस से ज्यादा साइकोलॉजिकल जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा जो था इनमें जो चीज थी वो थी कि इनको जो है ना साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा
कोविड-19 की सिचुएशन में फेस करने पड़े, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ सोशल बैरियर, और दूसरा जो फाइनेंशियल जो लिमिटेड सोर्सेज थे, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में जो थी वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो जब उनके साथ ये साइको सोशल सपोर्ट जो सेशंस जो है वो लिए गए, तो उनमें जीबीवी के केसेस में ये फेस कर देखा गया, मैं देखा कि वो अपने जो थे फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा अपने जो है ना इन जो थे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा जो थी वो परेशान थी। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि आप लोगों ने, रोजन ने और स्टेप वालों ने ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई, और इनके ऊपर मजीद जो है वो वर्क होगी इंशाल्लाह, और ये Thank you वुमेन very much. इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। थैंक यू सो और मच। आपके एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाना चाहते हैं। आपके बहुत सारी चीजें जो इस काउंसलिंग के दौरान आपने शेयर करनी है, तो आपकी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जला कैसर। जला, यू आर डॉटर ऑफ ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असेंबली। तो आपके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग डिसेबिलिटी योरसेल्फ, और आपके नज़दीक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी है, लीडरशिप भी है, तो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड योर एक्सेस बड़ी इजी है कि आप इस इशू को कैसे हाईलाइट कर सकती हैं। मैं ज़रा आपके मुझसे सुनना चाहूँगा व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग वेरी ब्रीफली। थैंक यू जरा, प्लीज अब ओवर टू यू। Assalamu alaikum, and thank you for having me. And I would like to, Mr. Atif, I would like to have 10 to 15, mostly 10 minutes to explain on this issue. सर मुझे 15 मिनट्स चाहिए ताकि मैं जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है थोड़ा सी ना वो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं क्योंकि मैम मुनज़्ज़ा हसन है तो इनको भी थोड़ा सा इस इशू के बारे में मेरे कुछ पॉइंट्स है ताकि उन करें। इनसे मेरी पहली भी बात हुई, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्टार्ट करना चाहूँगी कि 1998 में सेंसस हुई थी PWDs की टोटल पॉपुलेशन के बारे में। उस वक्त जो इनकी पॉपुलेशन थी वो 2.28% थी। नाउ अकॉर्डिंग टू 2017 पॉपुलेशन इनकी हुई 0.48%, जो कि खासी हद तक कम हुई। तो ये एक बहुत अहम और बहुत इशू है जो कि जिसके हमें बात करनी चाहिए और इशू रेज करनी चाहिए। दूसरी बात इग्नोरेंस की है कि स्पेशल पर्सन्स राइट्स को इग्नोर किया गया है। बहुत इंटरनेशनल इश्यूज जो इनको फेस है या जो भी इकोनॉमिक जो इश्यूज है उनको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हद तक इनको हाईलाइट नहीं किया गया, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइड पे चली गई ये बात। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को हाईलाइट करते हुए स्टेटमेंट दी थी कि जो स्पेशल पर्सन्स को डिसेबल्ड कहेगा या इस तरह, तो उन पे फाइन भी होगा और उनको मींस प्रॉपर्ली उनको पनिशमेंट होगी। तो उन्होंने भी इस बात में सीरियसनेस शो किए। फिर उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी बहुत हद तक सीरियसनेस शो की है कि उन्होंने जो सेंसस किए तो उनके मुताबिक 15% पॉपुलेशन जो है वो किसी तरीके से डिसेबिलिटी के साथ है। तो उन्होंने भी इसमें सीरियसनेस शो की। फिर ब्रिटिश काउंसिल उन्होंने भी इस बार हाईलाइट किया है कि 27 million are special person according to 2017 report। ब्रिटिश काउंसिल ने ये जो डेटा कलेक्ट किया था। एंड चीफ जस्टिस ने फिर जब अभी रिसेंटली 2017 में इस पर वो किया था, स्टेप लिया था, तो अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। तो अभी स्पीकर साहब ने भी इस पे वो किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे और इसको हाईलाइट किया है। अभी लास्ट ईयर भी हुआ था PWDs का 3 दिसंबर पे प्रोग्राम अरेंज हुआ था, जो कि बहुत अच्छा अरेंज हुआ था और बहुत पॉजिटिव
remarks आए थे और इस टाइम भी हुआ था. इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज होने चाहिए ताकि जो हिंड्रेंसेस है जो उनको मुश्किलात है सोसाइटी में, तो थोड़े से हाईलाइट हो सके ताकि तो वो हाईलाइट हो सके. जो टाइप्स है, I want to highlight it to all the respective members. Locomotor disability is a type of disability जो कि limbs की disability है, जिसपे वो बंदा walk नहीं कर सकता. जो Zara, आप म्यूट पर हैं. Can you unmute yourself? जी, अच्छा, मैं डिसेबिलिटी की टाइप्स आप पैनल को जरा बताना चाहती ताकि जो क्योंकि डिफरेंट डिसेबिलिटी एक टाइप में है, डिफरेंट टाइप्स है. Zara, are you there? I think IT team, can you check there's any technical fault or क्या वजह? Hello. Zara को call कीजिए. Meanwhile, Madam Ms. Munazza Hassan, and you learned that your schedule was extremely busy and you're just coming after the meeting, I think, at the President House. And thank you very much for joining us in this important meeting. Actually, madam, this topic has been really discussed, especially gender-based violence services against women with disabilities. So, आपकी आवाज टूट रही है आतिफ. हमारे नेट का मसला है उनके. आतिफ आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. Can you hear me now? इस पे क्यों नहीं आ रही? आपको मेरी आवाज आ रही है सब लोगों की? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो. जी आपकी आवाज आ रही है. अब आ रही है? बेहतर. मैं हालांकि जला बात कर रही थी, ड्रॉप आउट हो गई है किसी टेक्निकल इंटरनेट की डिस्कनेक्ट की वजह से. मिस मुनज़्ज़ा हसन मैडम, आप एक्सट्रीमली बिजी थी, हमें पता चला आपका स्केड्यूल भी आपने हमें ज्वाइन किया है. दिस टॉपिक इज रियली इम्पोर्टेंट. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ये वो मौजू है जिसके ऊपर बहुत कम बात हुई है, स्पेशली एट द लीडरशिप लेवल इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है. अब जबकि हमारे पास लेजिस्लेशन भी है, स्पेशल कमेटी भी बन चुकी है, एंड यू आर कन्वीनर फॉर द कमेटी, तो आपकी प्रेजेंस, आपका इसमें पर्सपेक्टिव हमारे लिए, आपकी लीडरशिप इंतहाई इम्पोर्टेंट है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विदाउट wasting any other second, I would like to request you to have your perspective on gender-based violence services for women with disabilities in Pakistan. जी अस्सलामुअलैकुम आतिफ. वो वाकई मेरा स्केड्यूल आज काफ़ी वो था, टाइट था. मैंने ये अब आबिया को दिया था टाइम 2:30 बजे का, लेकिन वो जो प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग थी वो बहुत लंबी होगी, और वो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हवाले से, अनेबल लोगों के हवाले से प्रेसिडेंट साहब ने मीडिया वालों को बुलाया था ताकि एक कैंपेन चलाई जाए मीडिया के अंदर, और लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उनको ये बताया जाए कि जो ये हमारे सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, इनको भी इग्नोर ना किया जाए, बल्कि एक मेन स्ट्रीमलाइन के अंदर हर एक्टिविटी के अंदर हर जगह इनको जगह दी जाए. और ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये पब्लिक अवेयरनेस ऑब्वियसली थ्रू मीडिया हो सकती थी. सो वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और मीडिया की तरफ से क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, लीजा और मायरा दोनों बैठी हुई हैं, तो मीडिया ने भी बहुत सी सजेशंस दी हैं और मीडिया का बड़ा अच्छा रिस्पांस था. तो जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उससे आपकी होप भी बढ़ेगी और जो लोग हैं उनको भी पता लगेगा कि ये भी शहरी हैं पाकिस्तान के. तो जो आपका इस वक्त टॉपिक है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, एंड स्पेशली डिसेबल्ड वुमेन. हम एज पार्लियामेंटेरियंस हम जहां आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं,
وہ डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत से इश्यूज हैं. अगर वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे जो हम टेक अप कर रहे हैं, लेजिस्लेटर का या पार्लियामेंट का एक स्पेसिफिक रोल है, जो कि मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि उस रोल के अंदर रहते हुए हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं और बहुत सी चीजें हम कर रहे हैं. पहली दफा इनिशिएटिव स्पीकर साहब ने लिया है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट्स हिस्ट्री आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की भी कमेटी बनी है. उनके इश्यूज के हवाले से ये कमेटी बनी है. पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है पार्लियामेंट का. एक तो आप देखते हैं ना हाउस के अंदर, लेकिन एक हाउस से बाहर होता है और वो कमेटी होती है. उस कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है जो इन लोगों का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज को देखेगी. इश्यूज के बाद उन इश्यूज के हवाले से जो कवानीन है उनको बनाने की जरूरत, जो हम कवानीन बनाने की जरूरत होगी या उसमें चेंजेस लाने की जरूरत होगी वो हम करेंगे. उसी तरह जब हम इन कवानीन को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि वायलेंस हो रही है विद डिसेबल्ड पीपल एंड स्पेशली विमेन और गर्ल्स, तो हम वो अगर ये कानून इसको कवर नहीं करता, जो हमारे कवानीन इसको नहीं कवर करते, तो हमने इस इशू को किस तरह एड्रेस करना है और हमने इसको कानून के अंदर किस तरह आपको प्रोटेक्शन देनी है. स्पेशली आप लोगों को प्रोटेक्शन, एक जनरल खवातीन को तो बहुत से कवानीन बन गए जिसके अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है. Some internet disconnection issue, I think, madam. Madam, you are not audible. आपकी आवाज में वीडियो स्टक हो गई है. अब आ रही है आतिफ? जी अब बेहतर है जी, रिज्यूम. अच्छा, पता नहीं शायद हमारे नेट का इशू है, हालांकि ये 8 GB है जिसका 10 GB है और आई डोंट नो ये किस किस्म का 10 GB है. आधी असेंबली काम नहीं कर रही है, आधी से भी कम कर रही है, उसके बावजूद नेट का ये हाल है. सो कहने का मकसद ये है कि हम ये बहुत अच्छा चीज आज आपकी जो एक सर्टन आतिफ साहब ने और आबिया ने जो ये पब्लिक हियरिंग या आप लोगों के ने जो इश्यूज रेज किए, आई एम सॉरी मैंने बहुत से मिस कर लिए, लेकिन ये मैं ले लूंगी आतिफ से या आबिया से कि वो हमें बता दें कि जो इश्यूज आपने रेज किए हैं इस हवाले से हम उनको किस तरह कानूनी तौर पे एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है और यही हमारा भी रोल है एज लेजिस्लेटर और एज सब कमेटी और एज स्पेशल कमेटी ऑन डिसेबल. जब तक हम कानून में आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोई अदारा आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे कोई जगह हो. वो प्रोटेक्शन कानून के जरिए आपको दी जा सकती है कि कानून के अंदर ऐसी शकें हों जिससे आपको वो प्रोटेक्शन दी जा सके. सो ये हमारा रोल है और इंशाल्लाह ताला विद ऑल सिंसेरिटी हम इस पे काम कर रहे हैं. इशू बेस्ड हम इश्यूज को पहले देख रहे हैं, जो आपने भी इशू रेज किया है, इस इशू को भी हम अपने उसके एजेंडे के अंदर इस चीज के अंदर डालेंगे और फिर देखेंगे कि जो कानून जो आईसीटी एक्ट है या दूसरे जो कवानीन पहले हैं उसके अंदर इसको एड्रेस किया गया है या नहीं. तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी उस वक्त ये इशू रहेगा. आपको हमें सब खवातीन को, चाहे वो डिसेबिलिटी के बगैर भी क्यों ना हो, उनको भी ये इशू होता है और ऑब्वियसली आपको वो ज्यादा इफेक्ट भी करता है और आप लोग ज्यादा सेंसिटिव भी हैं और होना भी चाहिए. तो ये हमारा काम है, ये हमारा रोल है एंड आई वांट टू अश्योर यू कि हम इस पे भी काम करेंगे, इसको भी अपने उसके अंदर डालेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, ma'am, for your input and important remarks. और आपके जो ये सपोर्ट है हमें कंटिन्यूसली चाहिए होगी. सो हम वेट कर रहे हैं अगर जला दोबारा हमें ज्वाइन कर सके, बिकॉज यू आर सेइंग और समथिंग और उसमें लाइन ड्रॉप हो गई थी. We have one more like participant जो हमने टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी ड्रॉप की थी. Aliza, if you can share your perspective very briefly. Aliza is from Karachi and she is a woman with hearing impairment, and we have Alia Afzal for the translation. So Alia, can you ask Aliza to share her thoughts on the topic, please, very briefly?
اوکے تھینک یو. السلام علیکم. میں ڈیف ہوں اور ڈیف کے بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جیسے ڈسیبلٹی کے اندر. تو اس ڈیف کے بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن کیسے کریں، کہیں بھی جائیں بات کیسے کریں، سب کچھ اندر ہی رہتا ہے، بات ہی نہیں کر پاتے ہیں. سو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. کوئی سپورٹ نہیں، انٹرپریٹرز نہیں ہے، زیادہ تر سب ہمیں اگنور کرتے ہیں. تو شادی ہو جاتی ہے، بس یہی سب چلتا رہتا ہے. سو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایک جو ایکولیٹی ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے بالکل بھی. ہم جیسے ڈیف ہیں تو ہمیں بہت معمولی سمجھا جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. پھر الگ سے وائلنس آ جاتا ہے کہ ہم تو کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہماری بات کون سنے گا. تو ہم پہ زیادہ وائلنس ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے ایسی لائف کا. کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، اندر ہی اندر سب چل رہا ہوتا ہے. بتائیں کسے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے، انٹرپریٹرز اتنے کم ہے کہ اگر انٹرپریٹرز ہو، سپورٹ ہو تو ایک انکلوژن سا فیل ہوگا. تو ایک ڈیف کے لیے ایک کمیٹی بنانی چاہیے ڈسیبلٹی پہ ہی، اور اس میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی ہے تو ہم بول سکیں، ہم اپنا کر سکیں. گورنمنٹ لیول پہ کچھ ہونا چاہیے اس طریقے سے، بہت ضروری ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وومن ڈیف کے لیے بھی کچھ کیا جائے، اور کیونکہ ان کے لیے تو جابس وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہے اتنی. کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم بات چیت بھی نہیں کر پاتے ہیں پراپرلی کسی سے. تو کورسز جو وومن کو امپاور کرنے کے لیے ڈیف کے لیے بھی کورسز ہونے چاہیے، ان کے لیے ورک شاپس رکھوانی چاہیے، ڈفرینٹ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی امپاور ہو سکے، تاکہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے، اندر ہی اندر نہ رہیں، کسی سے کمیونیکیٹ کر سکے، کسی سے بات کر سکے. Thank you, Eliza. Thank you very much. We are very happy that you joined this meeting, or your points are well noted. میں ضلع کیسر اگر if he is around، ہم ان کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. if he is around. جی ذلا پلیز آپ بولیے گا. میں کچھ جو ڈفرینٹ فارمس آف ڈسیبلٹی ہے ان کو ہائی لائٹ. سوری آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی لیکن ہم آپ کی وائس کو سن پا رہے ہیں. پلیز. میں منزہ حسن بھی ہے اور آصف بھی ہے اور آپ بھی ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دس. ڈسیبلٹی کے جو فارمس ہیں، فزیکل ڈسیبلٹی میں لوکوموٹر ڈسیبلٹی ہے. لوکوموٹر ڈسیبلٹی لمبس کی ڈسیبلٹی ہے. جو پرسن اس ڈسیبلٹی پہ آ جائے تو وہ پھر انیبل ہو جاتا ہے، واک نہیں کر سکتا. ہو جاتی ہے کسی انڈیویجول کو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. cerebral palsy another disability ہے. یہ permanent movement disorder ہے. It is caused by immature development of brain and muscular dystrophy. It is also a disability. It is a group of disease that cause weakness of and loss of muscles in human body. Polio related physical disability جو ایک بہت اہم ڈسیبلٹی ہے اور اسے پاکستان میں اس ڈسیبلٹی پہ بہت زیادہ کام بھی جاری ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن اس پہ کام کری ہے. پولیو مائلیٹ ڈسیبلٹی اس کو کہتے ہیں. یہ ویکنیسز ان لیگس ہے اور اس سے پیرالائزڈ ہو جاتا ہے بندہ اس ڈسیبلٹی سے. ویژول امپائرمنٹ disability, hearing impairment disability, developmental disorders, these all are disabilities. Now, major issues جو کہ person living with disabilities face کرتے ہیں، ان کے پاس driving license نہیں ہے،
different forms of disability, जो कि deaf है तो उनके लिए भी इसे according to legislation या constitution उनको driving lessons दिए जाए ताकि उनको easily वो अपनी life enjoy कर सके and जो special person means कि जो अपने पाँव मूव नहीं कर सकते जो walk नहीं कर सकते उनको भी थोड़ा सा help out किया जाए. And education जो कि main problem है हमारी country में तो I would like कि government अगर इस बारे में initiative ले और जो special schools है उनको high level पे ले आए उनको ज़्यादा उनको equip करे और उनको infrastructure base उनको अच्छा करे और NGO सिर्फ काम को नहीं कर सकती है. अगर गवर्नमेंट इस बात पे ज़्यादा बोले इंटरेस्ट ले तो कुछ ज़्यादा अचीवमेंट हो सकती है. एजुकेशन अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादा काम किया जाए बिकॉज मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैं स्पेशल एजुकेशन नहीं हासिल करी हूँ. मैंने स्कूल में भी नहीं किया ना कॉलेज में. अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ तो मेरा जो है एजुकेशन वो स्पेशल एजुकेशन नहीं है. मैं नॉर्मल एजुकेशन हासिल करी. इससे अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे एजुकेशन में अगर काम करें तो इससे ये होगा कि सोसाइटी इंक्लूसिव मीन्स ऐसे अगर एजुकेशन इंक्लूसिव होगा तो सोसाइटी इंक्लूसिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली. तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की जाए क्योंकि मैंने खुद भी इस बात को फील किया है कि मेनली इन स्कूल्स के स्टूडेंट्स का अगर आप फील नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली आपको उनकी बातें फील होती है कि वो आपको किस तरह रिएक्ट करते हैं इग्नोरेंस किस तरह होती है. तो अगर काइंडली एजुकेशन में लॉज के मुताबिक काम किया जाए इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम किया जाए तो it will be a great achievement. Other than that, employment job creation होनी चाहिए special persons के लिए. इनके लिए at least 2% quota होना चाहिए in every sector के job उनको जो उनके लेवल के हो तो उनको job मिलने चाहिए ताकि वो एक earn कर सके अपने लिए और वो dependent members नहीं हो independent members हो society के. And other than that, उनको recreational activities में उनके लिए होना चाहिए. बेसिकली हॉस्पिटल में तो हमारे लिए स्लाइड वगैरह होती है लेकिन हॉस्पिटल में तो एक बात जरूरी नहीं है. इसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का भी ख्याल रखा जाए और अदर जो एक्टिविटीज उनमें भी ख्याल रखा जाए. और Can you hear me? जी बिल्कुल ज़्यादा आपकी आवाज़ आ रही है. सब सुन रहे हैं आपकी आवाज़. ओके. और दूसरा जो मेन पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगी वो ये है कि हसन आपके साथ है. जी हैं वो भी हैं कॉल पे. अच्छा मैं उनको स्पेशली ये बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में somehow right to vote है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऐसी नहीं कि वो सपोर्ट कर सके PWDs को. आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जो PWDs इलेक्शन डे पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं और बहुत हिंड्रेंसेस उनको होती है. तो अगर मीन्स के अगर उनको पोलिंग के लिए एक अलग एक जगह दी जाए ताकि वो इजीली वोट कास्ट कर सके और इसमें अकॉर्डिंग टू देयर ऑन चॉइस. और दूसरा पॉइंट में इसी से रिलेटेड हाईलाइट जो करना चाहूंगी वन ऑफ माय लास्ट पॉइंट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट है फॉर स्पेशल पर्सन तो राइट टू इलेक्शन ऑन रिजर्व सीट्स होने चाहिए. मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस बात को हाईलाइट करें और दूसरे कि अब हर पार्टी को इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए पॉलिटिकल बेसिस पे कि एटलीस्ट 2% इन एवरी असेंबली मेनली इन नेशनल असेंबली 2% कोटा होना चाहिए स्पेशल पर्सन के लिए. इससे मेनली ये बात होगी कि अगर स्पेशल पर्सन को मौका मिलेगा और जो स्पेशल पर्सन सोसाइटी में है उनके राइट्स के बारे में आवाज उठेगी और उनके राइट प्रोटेक्ट होंगे तो
ये एक पॉइंट है कि अगर स्पेशल पर्सन अगर उनको राइट टू वोट है समहाउ तो एक तो इस पे एक लेजिस्लेशन के मुताबिक काम किया जाए ताकि उनको इजीली एक्सेस हो अपने वोट कास्ट करने के लिए। दूसरा, अगर उनको राइट टू वोट है तो उनको राइट टू इलेक्शन और स्पेशल सीट होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस कि वो किस पार्टी को अपने लिए समझते हैं कि इसको मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं आगे जा सकते हूँ, तो उनके राइट है। दूसरा जो मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगी कि जो हमारे आईडी कार्ड है, अभी तो ये हुआ कि आईडी कार्ड उसको मीन फॉर लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेसिबल होना चाहिए स्पेशल पर्सन के लिए। दूसरा अगर जो पॉइंट है मैंने दूसरा बेसिक पॉइंट तो ये है कि हेल्थ कार्ड जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए होने चाहिए ताकि उनको जो राइट जो हेल्थ इश्यूज है तो वो उनको हाईलाइट कर सके। और इसका हेल्थ कार्ड उनको स्पेशली उनको इशू होने चाहिए। दूसरा ये जो आईडी कार्ड है इनको अगर आईडी कार्ड के थ्रू हो सके और अगर स्पेशल पर्सन कार्ड भी होने चाहिए ताकि मैं मुनज़्ज़ा हसन अगर मुझे सुने तो मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि डिफरेंट स्कूल में अब ये बात हाईलाइट करनी चाहिए कि उधर अगर कोई स्पेशल पर्सन स्पेशल स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है तो उनको उधर स्पेशल पर्सन के लिए पूरे डेटा होने चाहिए कि वो किस तरह की डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है और उसके लिए कार्ड्स होने चाहिए। स्पेशल पर्सन की स्कूल्स के लिए कार्ड्स होने चाहिए, पूरी डेटा होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो उस एजुकेशन करियर में उनको थोड़ी सी हिंड्रेंस ना हो। These are my points कि मैं जो basic points थे वो मैंने आपसे को मैंने दी थी। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Zala. Thank you for your time and sharing your valuable thoughts with us. क्योंकि ये बहुत important point है, especially जो आपने आईडी कार्ड और हेल्थ कार्ड से रिलेटेड मेंशन किए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्पेशली वुमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी। और जब तक उनके पास ये सर्विसेज नहीं होंगी वो फर्दर जो सर्विसेज तक एक्सेस नहीं कर सकेंगी। आई रियली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस यहाँ पे आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ा, लेकिन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर कमेंट्स हियर। वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही है, तो जैसे आपसे मैंने ये बात डिस्कस की थी और मैं दोबारा इनको करना चाहूँगी कि अगर इनको मीन घरों में अगर इस तरह से वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो है अगर उनको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट है उनको सही बेकिंग में है, तो अगर वो केक बेक करे या इस तरह से हम कोई वेबसाइट बनाए कि उसके थ्रू वो लोग अपनी वुमेन को केक बेकिंग में अगर इंटरेस्ट है वो अच्छा कर सकती है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म बनाए उसके लिए वेबसाइट हो ताकि उसके थ्रू वो उसको बेच सके और वो उससे अर्निंग कर सके, तो उससे वो थोड़ी सी उनकी हेल्प होगी। जी 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 बिल्कुल। मैं अभी इसको थैंक यू वेरी मच जला। आई एम रियली सॉरी कि हम आपकी वीडियो के साथ जो डिस्कशन थी इसको कंटिन्यू नहीं कर सके कुछ टेक्निकल पॉइंट की वजह से। अभी कैन यू रैप अप द मीटिंग विद योर कंक्लूड? ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मैम मुनज़्ज़ा हसन साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, क्योंकि हमारी जो अभी इनिशियल मीटिंग हुई उसके अंदर जो हमने ब्रीफली बात की वो यही थी कि एक जो प्रोजेक्ट हम लोग UNFPA के साथ एक इनिशिएटिव लिया है वुमेन विद डिसेबिलिटीज और उस पे जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हम डिस्कस कर सकें कि कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज को जेंडर बेस्ड वायलेंस मिटिगेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए। सेकेंडली जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के, वुमेन हैरेसमेंट, उसके अंदर रिफॉर्म लाई जाए और वर्ल्ड
वुमेन विद डिसेबिलिटी हम इंक्लूड कर सकें, ताकि जो भी प्लान हो, पॉलिसीज हो, इम्प्लीमेंटेशन का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हो, उसके अंदर हम लोग वुमेन विद डिसेबिलिटीज की जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें. Thank you so much, madam, for your time or your commitment and support for women with disabilities. ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम लोग पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ साथ वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस और पार्लियामेंट हाउस के साथ, स्पेशली स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब के साथ हम मिलकर जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं. और थैंक यू. हम लोग चाहेंगे कि UNFPA और वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस और वुमेन जो हमारी पार्लियामेंट्री हैं और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एक ऐसा प्लान बना सकें कि जहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को स्पेस क्रिएट करने के साथ साथ हम उनकी एंगेजमेंट और उनकी लीडरशिप और उनकी जो एक डिग्निफाइड लाइफ है जेंडर बेस्ड वायलेंस के बगैर वो मेक श्योर कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. ऑल द स्पीकर्स, मिस मायरा इमरान, सालिहा, थैंक यू वेरी मच. और हमारे साथ जायदा, सना और अलीजा मोनिम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू. एंड मिस मायरा इमरान, थैंक यू सो मच मैडम. एंड थैंक यू ज़ला फॉर योर टाइम टुडे. आई एम बहुत रियली शुक्रिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे कि हम आगे जितना भी काम करें आप सब लोगों के. और थैंक्स टू द पीपल हु आर लिसनिंग अस ऑनलाइन इन द फेसबुक. आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस और आपकी रिकमेंडेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्लीज अपने कमेंट्स उस पर शेयर कीजिएगा ताकि हम जो अपनी आगे प्लान बनाए उसके अंदर उसको सपोर्ट कर सकें, इंक्लूड कर सकें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम. थैंक यू.